Yeah. Hi everyone. Can you all hear me? Yeah. Hello everyone. Am I audible to each one of you? Can I start? Ma'am. Yeah. Hi. Okay, Ji. So, any questions from the previous sessions? Anything you want to ask me? You want to discuss? किसी को कोई डाउट्स पहले वाले किसी भी टॉपिक्स में? Uh, no, ma'am. Okay. So, I think last session में we had completed this pregnancy and infancy वाला thing, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Okay, now in today's session, I would be starting with a unit जो मैं आज के आज ही complete करना चाहती हूँ because you know that is an important one and its concepts are actually interrelated. So in that unit will require one full session. So that is why I would want कि हम पहले वो वाली unit कर ले ताकि you know ऐसा ना हो कि आधी आज हो रही है आधी next session पे हो रही है so it will be a time lapse. Okay, so it is better that I start off with that unit first and later on I'll cover the important aspects of the other units also. So that unit is actually unit number I'll tell you nutritional status के ऊपर एक unit है आपकी unit 15 or chapter 15. Okay, so I'll just share my screen with you all. Let others also join in. I think people are joining in, so let them join in and I'll start. So I'm sharing my screen by then. Just give me a second. No, this is not. Just give me a second. Can you all see my screen? I have shared in the yeah. So can we start? Yes, Hi, ma'am. ma'am. Yeah, I've hi. just joined. So, which chapter we are reading? Unit 15. Thank you. ओके सो यूनिट 15 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें एग्जाम्स में या वैसे जनरली भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये जो पूरी की पूरी यूनिट है दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस. ठीक है, इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो आपने प्रीवियस सेक्शन में भी किया है जहाँ पे भी डिस्कस्ड अबाउट वेट एंड हाइट एंड एवरीथिंग. ओके, बट दिस विल बी इन अ लिटिल मोर डिटेल्स. So, assessment of nutritional status. So, actually, what is nutritional status is that whatever you eat, how your body takes up that, how your body utilizes that, that will actually define that what is your nutritional status. So, broadly in a layman's language, हम बोलते हैं ना कि उसका nutritional status अच्छा है या poor है या वो overweight है या normal है या underweight है. So, these are some of the common terms which we use interchangeably with commenting on someone's nutritional status. But यहाँ पे you have to understand that in case of children and in case of adults, right? So you have to be very very specific that how you are going to assess nutritional status of these individuals, right? And ये बच्चों के लिए अलग होंगे और adults के लिए अलग होंगे. ठीक है, then see यहाँ से your unit is majorly starting. Okay, so measurement in body size. तो यहाँ पे जो first few indicators उन्होंने दिए हुए हैं that are all related to children. तो चिल्ड्रन का जब हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात की थी, सपोजिंगली आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल. इफ आई गेट अ 4 year old गर्ल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, एंड आई आस्क यू that how we are going to assess nutritional status of this child, or tell me something about कि ये बच्चा आपके सामने है, 4 साल की लड़की है, आप मुझे बताओ कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस इसका कैसा लग रहा है. कैन यू जस्ट राइट इन चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ दैट व्हाट आर द थिंग्स यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. Weight या, and height. ओके, वेट एंड हाइट, और Looks, ओके, और body कोई चीज़. proportion, ठीक है, ओके, और कुछ. Quality of hair and skin type.
क्वालिटी ऑफ हेयर एंड स्किन, ठीक है, गुड। और कोई चीज़, और कोई चीज़ इसके अलावा? interactive इंटरैक्शन, ओके, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। और सो दीज आर द थिंग्स, राइट, ओके। सी आपके मैनुअल में भी ना बहुत सुपरफिशली सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस गिवन है, जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूजुअली इन न्यूट्रिशन व्हेन वी टॉक अबाउट assessment, nutritional assessment, we say, and इसको ना you can write a bit because आपकी बुक में सिर्फ एक aspect given है, but I'll tell you because other aspects are equally important. So whenever we say that you have to assess someone's nutritional status, whether it is a child or a old person or an adult, adolescent, whatever, there are different methods, right? अब इन methods को याद करने का तरीका होता है ABCD. Okay जी, so what you can write is ABCD, ठीक है। तो आपको किसी का भी न्यूट्रिशनल असेसमेंट अगर आपने करना है तो दीज आर नोन एज डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। सो ABCD कौन से मेथड्स हैं? डायरेक्ट मेथड्स, बिकॉज देयर आर सम other indirect methods also, and this is not given in your manuals but you need to understand that, ठीक है, indirect methods. So nutritional status आपने कभी भी किसी भी पर्सन इंडिविजुअल का निकालना है, उसको असेस करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है, और दूसरों को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। इज दिस क्लियर अप टिल हियर? yes ma'am. ठीक है, ओके। Yes. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ना कल तक एक रिपोर्ट चाहिए, राइट, और आप मेरे को बताओ कि इंडिया में न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चों का कैसा है, राइट, यू हैव टू गिव मी और यू हैव टू प्रेजेंट मी दी रिपोर्ट विच इज नेशनली डिपिक्टिव ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन। क्या करोगे बताना जरा, कैसे लेकर आओगे कल तक रिपोर्ट? Blood test. तो मैं पूरे इंडिया के बच्चे का जाके ब्लड टेस्ट लेकर आऊँ? uh, सोचो क्या करोगे। आप किसी डेटा को रेफर करोगे ना, yes. Yeah. आप समझ रहे हो, कल सुबह तक तो नोबडी इन ऑन दिस अर्थ कैन गो एंड फेच द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एवरी चाइल्ड एंड प्रेडिक्ट, राइट। तो इसके केस में क्या हो गया कि सम टाइम्स इन न्यूट्रिशन इन रिसर्च व्हाट हैपेंस इज वी टेक अप सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो मैं जाऊंगी, मैं NFHS की साइट देखूंगी, मैं वर्ल्ड WHO की देख सकती हूँ, मैं वर्ल्ड बैंक की देख सकती हूँ, और उन्होंने जो स्टडीज प्रीवियसली की होगी मैं उसको देख ताक के बता सकती हूँ कि भाई हाँ, बच्चों के केस में अंडरवेट ज़्यादा है या ओबेसिटी भी बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। Yes ma'am. तो इसमें मैंने कोई न्यूट्रिशनल असेसमेंट का कुछ नहीं किया, आई एम जस्ट रेफरिंग टू डिफरेंट रेट्स ऑफ माई कंट्री नेशनली और इंटरनेशनली एंड आई एम कमेंटिंग ऑन दैट, सो दैट इज व्हाई दे कम इन द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो इनडायरेक्ट मेथड्स का सिंपल सा मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स, यू जस्ट रेफर टू स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, एंड दिस विल इंक्लूड मोर्टालिटी रेट्स एंड morbidity rates, ठीक है। और ये भी बताना जरूरी होता है बिकॉज somewhere now there where you come across these things like मोर्टालिटी रेट किसका क्या है, मोर्बिडिटी रेट किसका क्या है। तो मोर्टालिटी रेट होता है डेथ रेट और मोर्बिडिटी रेट होता है डिजीज रेट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव दिस एग्जाम्पल ऑलवेज, कोविड कितने लोगों को हुआ, ठीक है, दैट बिकम्स मोर्बिडिटी, राइट, बट कितने लोगों की डेथ हुई कोविड की वजह से, दैट बिकम्स मोर्टालिटी, ओके। So please understand that nutritional status of an individual can be broadly classified into two methods of assessment. First is direct and second is indirect. Indirect I have explained you कि जहाँ पे you are referring to the secondary data, you are fetching someone else report, research, numbers, या हमारे country में किसी disease का mortality, morbidity rate क्या है and you are commenting, okay, so that is indirect, right? On the hand, डायरेक्ट क्या हुआ कि तुमने बोला ना कि उसके बाल देखेंगे, उसके स्किन का टेक्सचर देखेंगे, उसका हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ असेसमेंट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर सब्जेक्ट, ओके। किसी ने भी बोला था कि उसका आप कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, राइट। सो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर डायरेक्ट मेथड्स। इज दिस थिंग क्लियर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है? Yes ma'am. ठीक है, Ma'am, it's clear. But ABCD will refer to what? डायरेक्ट, ABCD. ABCD comes under direct methods, तो वो मैं भी उसका मैम explain कोई फुल फॉर्म है? मैं बता रही हूँ, ठीक
ठीक है। तो Thank डायरेक्ट मेथड्स में वी से कि डायरेक्ट मेथड्स, अब जैसे आप में से बहुत लोगों ने सिर्फ बताया फिजिकल फीचर्स के बारे में ना, कि भाई हाइट ले लेंगे, वेट ले लेंगे, या उसके बालों का रंग देख लेंगे, आंखें देख लेंगे, स्किन डल तो नहीं है एंड ऑल दैट। तो ABCD स्टैंड्स फॉर एंथ्रोपोमेट्री, आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स, एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। सेकंड इज बायोकेमिकल, बायोकेमिकल, ओके। थर्ड इज क्लिनिकल, एंड लास्ट वन जो आप में से किसी ने भी नहीं बोला, दैट इज डाइटरी, ठीक है जी। सो A B C and D, ठीक है। डायरेक्ट मेथड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड, अप्रोच, टूल यूज्ड। सो यू हैव एंथ्रोपोमेट्री, यू हैव बायोकेमिकल, यू हैव क्लिनिकल एंड यू हैव डाइटरी, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री से क्या मतलब होता है? एंथ्रोपोमेट्री इज लाइक यू आर डूइंग योर बॉडी मेजरमेंट्स, ठीक है। तो बॉडी मेजरमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? अगर आप किसी का हाइट ले रहे हो, किसी का वेट ले रहे हो, सो यू नो ऑल दीज फिजिकल डायमेंशंस व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, that is all the part of your ABCD method का A1 approach. That is what anthropometry. Is this clear? Clear up till here? you. Yes, ma'am. ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं जो आप फिजिकली चेक कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हेन आई से कि आपने किसी का हाइट लिया, किसी का वेट लिया, और फिर आपने किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखा है, बच्चों के केस में आपने उसका हेड सर्कमफ्रेंस देखा है, तो ये जितनी भी बॉडीली मेजरमेंट्स हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर एंथ्रोपोमेट्री। इसमें आपने कोई टेस्ट नहीं करना, कोई और चीज़ नहीं देखनी, यू आर सिंपली कंसर्न विद द बॉडी डायमेंशंस, एंड यूजिंग बॉडी डायमेंशंस यू आर कमेंटिंग कि भाई आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो जैसे अब आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, दीज आर ऑल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, राइट। दूसरा क्या होता है? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में क्या आया? जहाँ पे आप किसी भी तरीके का बायोकेमिकल टेस्ट करा रहे हो, जैसे अगर सोचो कि यू नो आई एम गोइंग फॉर माय हीमोग्लोबिन टेस्टिंग, ओके, या मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा थायराइड का लेवल ठीक है या नहीं है, पीपल गोइंग फॉर ब्लड शुगर टेस्टिंग। तो ये सारे क्या एस्पेक्ट्स हो गए? ये सारे हो गए आपके बायोकेमिकल, जहाँ पे थ्रू यू नो योर ब्लड सैंपल्स विच इंक्लूड मेजरली योर ब्लड, यूरिन एंड फीसेस, यू टेल अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पर्सन। हम लोग जनरली भी हर 6 महीने 8 महीने बाद फुल बॉडी चेकअप जो लोग कराते हैं, वो क्यों कराते हैं? बिकॉज दे हैव टू बी श्योर ना कि भाई उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उनमें कोई डेफिशिएंसी या कुछ एक्सेस तो नहीं हो रहा। अगर आप 6 महीने बाद लगातार करा रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, आपका ब्लड शुगर लेवल तो सही जा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ वे इन विच यू आर कीपिंग चेक ऑन योर न्यूट्रिशनल स्टेटस, राइट। Third is clinical. Now, clinical is related to just seeing or observing a person from head to toe and commenting on the nutritional status. जैसे अभी किसी ने बोला कि हम उसके बालों का कलर देख लेंगे, हम उसकी स्किन का कलर देख लेंगे, तो यू नो यू आर नॉट मेजरिंग एनीथिंग, क्योंकि अगर आप मेजर कर रहे हो बॉडी डायमेंशंस को, वो एंथ्रो हो गया। अगर आप उसका कोई भी ब्लड सैंपल ले रहे हो, यूरिन सैंपल ले रहे हो, यू नो, देन इट बिकम्स बायोकेमिकल। तो क्लिनिकल में क्या होता है? आप सिर्फ सुपरफिशियली ऊपर से साइन एंड सिम्टम्स देखते हो, एंड अगर आपको लगता है कि यू नो कुछ तो गड़बड़ लग रही है, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर क्लिनिकल असेसमेंट। आई टेल यू फॉर एग्जांपल, व्हेन यू गो और विजिट अ फिजिशियन, बुखार है, सर दर्द है, कुछ भी है, वो सबसे पहले आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है ना, आंखें, राइट। एंड ही माइट से दैट यू नो लुकिंग एट द कलर ऑफ योर आईज एंड योर यू नो फीचर्स और बॉडी, ऐसा लग रहा है कि बहुत पेलनेस है, तो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स क्लिनिकल, राइट। उसने आपको एक एस्टिमेशन दे दिया है, एक अप्रोक्सीमेशन आपको मिल गया है, दैट यू नो आई कैन सी सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पर्टिकुलर डेफिशिएंसी इन यू। जब आप थायराइड देखते हो तो आप नेक के पास हाथ लगा के देखते हो ना कि वो स्वेल्ड अप तो नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल योर क्लिनिकल, राइट। क्लिनिकल के बाद जो चौथा आता है, दैट इज योर डाइटरी। अब डाइटरी में क्या होता है? बीइंग न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट और इनटू द न्यूट्रिशन फील्ड, you actually analyze nutritional status using the dietary intake of the population. तो अगर ये 4 साल की लड़की है और मुझे भाई देखने में लग रहा है कि इसका वजन तो कम है, ऑब्वियसली आई वुड वांट टू नो ना कि क्या खा रही है, यू नो व्हाट इज रॉन्ग इन हर डाइट। तो जब आप वो डाइटरी असेसमेंट करते हो, एनर्जी, प्रोटीन, कार्ब्स, फूड ग्रुप कंपैरिजन, जो हमने अभी पहले यूनिट में किया था, सो दैट बिकम्स योर डाइटरी। Okay, so A, B, C, and D. You have anthro, you have biochemical, you have clinical, and you have dietary. What happened? Okay. आपके कोर्स में जो सबसे ज़्यादा डिटेल में गिवन है, दैट इज एंथ्रोपोमेट्री। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? Ma'am. दिस इज फाइन? Yes, ma'am. ओके। मैडम डायट्री में क्या बताया आपने?
डाइटरी में आप ये देखते हो कि उनका डाइटरी पैटर्न, डाइटरी इनटेक कैसा है। Okay, 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 Ma'am, which page are okay. we on? Thanks. Which page? I just joined in late. मतलब आप ये तो जानना चाहोगे ना कि वो डाइट में क्या खा रहा है, Yes, yes. ठीक है। तो अगर मैंने आपका डाइटरी असेसमेंट करना है तो मैं आपसे पूछूंगी, अब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टू दैट, वी विल लर्न दीस ओके इन द वाइल, राइट। तो इसमें ये होता है कि आपने पूरे दिन में क्या खाया, तब आप उसको क्वांटिफाई करते हो, फिर आपको उनका एनर्जी प्रोटीन सब कुछ निकालना पड़ता है। अब जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अभी 4 साल की बच्ची की हम बात कर रहे हैं, तो मे बी हर मदर गेट्स हर एंड आप सबसे पहले उसको नज़र देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये बच्चा बहुत पेन लग रहा है, राइट। दैट इज क्लिनिकल। आपने उस बच्चे का हाइट वेट लिया और आपको लगा कि नहीं यार इसका तो वजन भी कम आया है, दैट बिकम्स एंथ्रोपोमेट्री, ओके। बट एंथ्रोपोमेट्री इज गुड, clinical is just an approximation because sometimes what happens is कि there are more than one deficiencies जिसके साइन एंड सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे हैं, और सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स को देख के मैं कंफर्म नहीं कर सकती। जितने भी डॉक्टर्स फिजिशियंस होते हैं ना, दे गिव यू दिस थिंग कि हाँ शायद पेननेस है, सब कुछ है, तो मेरे को लग रहा है कि आपको ना अनीमिया है, आप एक काम करो, आप ब्लड टेस्ट करा लो, क्योंकि कंफर्मेटरी आपको किससे मिलेगा, बायोकेमिकल से। सो बायोकेमिकल आर दी मोस्ट एक्यूरेट, दे आर दी मोस्ट रिलायबल, एंड उसके बाद ही आपको ये होता है कि हाँ दिस इज कंफर्मेटरी की है। कोविड में बहुत लोगों को नहीं था ना कुछ साइन एंड सिम्टम, बट व्हेन दे यूज्ड टू गेट इट टेस्टेड दे वर पॉजिटिव्स, एंड अगर बायोकेमिकल ने आपको पॉजिटिव बोला है, सो दैट मीन्स यू आर पॉजिटिव, ओके। सो बायोकेमिकल आर द मोस्ट कंफर्मेटरी वन। द ओनली प्रॉब्लम विद बायोकेमिकल इज कि भाई वो कंफर्मेटरी भी है, एक्यूरेट भी है, और वो लास्ट वर्डिक भी है, बट वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। मैं और आप जाके किसी का ब्लड फेच करके टेस्ट नहीं कर सकते, यू नीड टू हैव अ टेक्नीशियन, ठीक है। यू नीड टू हैव प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, यू नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट विद लैब जहाँ पे सारी की सारी टेस्टिंग होगी एंड ऑल दैट। सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज सिनेरियो सिचुएशंस, यू विल हैव टू डिसाइड कि आपने चारों मेथड यूज करने हैं या आप कोई कॉम्बिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। दिस इज फाइन, इज दिस क्लियर, ओके। अगर तुम लोग नहीं बोल रहे हो तो आई सपोज दैट दैट इज फाइन, ओके। Now, Yes, yes. yeah. So now we are starting with measurement of body size. So why it was important for me to make you understand this. अब ये body size है, so that means we are talking or we are discussing anthropometry part of it, okay? And body size में जैसा कि हम पहले discuss कर चुके हैं, the two most important indicators are what? Weight and height, ठीक है। तो वेट जो यहाँ पे गिवन है एंड देन हाइट। वेट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट अ नॉर्मल हेल्दी वेट शुड चाइल्ड ऑफ द बर्थ वेट of the child, birth weight of the child should be above 2.5, and it can be somewhere like 2.5 3.53, that is normal। 2.5 से कम है तो वो लो बर्थ वेट बेबी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने टेक्निक बताई हुई है कि भैया बच्चे का वजन कैसे यू हैव टू टेक केयर कि आपने कैसे लेना है, तो मिनिमम क्लोथिंग होनी चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। देन लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया, आपका हाइट, ओके, बिकॉज उसमें यू असेस द लेंथ ऑफ द चाइल्ड। अब ना हम हाइट बोलते हैं और हम लेंथ बोलते हैं। हाइट इज इन केस ऑफ अडल्ट या चिल्ड्रन हु कैन स्टैंड स्ट्रेट, खड़े होकर जब आप बच्चे की लंबाई नाप रहे हो, दैट बिकम्स हाइट। बट किड्स हु आर वेरी वेरी स्मॉल, अ 6 month old बेबी और लेस देन अ ईयर ओल्ड बेबी जो खड़ा नहीं हो सकता है, राइट। तो उसके केस में आपने देखा होगा जो पीडियाट्रिशियंस हैं या जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, वो लिटा के उसकी लंबाई नापते हैं, तो तभी हम उसको क्या बोलते हैं, लेंथ एंड नॉट दी हाइट। Is this clear? So that is why sometimes you refer height and sometimes you refer to this measurement to be length. So height is in the case of children or adults जो लंबा खड़ा होके आप उनकी ले सकते हो linear measurement, but बच्चों के केस में because you have to make them lie, so it is not high, it becomes length of the child, okay। तभी I don't know how many of you went to that WHO का section, तो वहाँ पे आपने हर चार्ट पे अगर देखा होगा लिखा होता है height slash length, so length they are referring अगर आप लिटा के बच्चे की लंबाई ले। Is this clear? Yes. अब जब हम हाइट और लेंथ की बात करते हैं तो अगेन इफ यू रिमेम्बर एक वेट का चार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। वेट फॉर एज हमने किया था जब आई आस्क्ड यू कि इस बच्चे का इतना एज है तो उसका रेफरेंस बॉडी वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे यू विल सी अनदर टाइप व्हिच इज लेंथ एंड वेट, एंड आई विल कम टू इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। अब देखो हमने बोला कि एक होता है हाइट और एक हमने बोला वेट, राइट। ये मेजरमेंट्स है ना, you're understanding, these are what, these are measurements, you're measuring something, you're measuring height, you're measuring weight, perfectly fine। but अगर मैं आपको बोलूं कि इस बच्चे का हाइट
सपोजिंगली 80 सेंटीमीटर्स है, 80 सेंटीमीटर्स। अब तुम मुझे बताओ कि इस बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, क्या आप बता पाओगे? आई एम ओनली टेलिंग यू दैट दिस चाइल्ड का हाइट इज 80 सेंटीमीटर। No. यू एबल टू कमेंट व्हाई? No. आपको क्या चाहिए होगा और? उसका एज भी चाहिए रहेगा ना, वेट Weight और भी। Wait. हाउ ओल्ड इज या द चाइल्ड। ओके, तो या ठीक है। अब आप ये तो पूछोगे कि भाई ये बच्चे का चलो 80 सेंटीमीटर है, पर अभी बच्चा कितने साल या कितने महीने का है, मुझे क्या देखना है? ठीक है, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मेजरमेंट्स हाइट एंड वेट आर इंपॉर्टेंट, बट दीज आर बेसिक मेजरमेंट्स। ओके, यू नीड टू रिलेट दीज इंडिविजुअल मेजरमेंट्स टू समथिंग एंड दैट समथिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज एज। जैसे आपको प्रीवियस सेक्शन में याद होगा, हमने वेट फॉर एज किया था, रिमेंबर? ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल दोस थिंग एज इंडिकेटर्स। यू कैन मेंशन समवेयर इंडिकेटर्स। ठीक है जी, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? विच इंडिकेट समथिंग ना। तो जब आप दो मेजरमेंट्स को आपस में रिलेट करते हो एंड देन यू कमेंट ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ समथिंग, दैट बिकम्स एन इंडिकेटर। तो मेजरमेंट इज द सिंपलेस्ट मेजर विच यू आर टेकिंग। हाइट एंड वेट होता है, एंड यूजुअली नो एज इज नॉट अ मेजरमेंट, बट ऑब्वियसली दैट इज द बेसिक थिंग विच यू नीड टू नो, राइट? MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस एक मेजरमेंट है, ठीक है। ऐसे ही हेड सर्कमफ्रेंस एक मेजरमेंट है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस एक मेजरमेंट है। बट जब आप इस मेजरमेंट को किसी और मेजरमेंट के साथ रिलेट करते हो, जैसे कि एज हो गया, या अगर हाइट है तो मैं हाइट को एज के साथ भी कर सकती हूँ, मैं वेट के साथ भी कर सकती हूँ, एंड सिमिलरली वेट को भी मैं एज के साथ भी कर सकती हूँ, मैं हाइट के हिसाब से भी कर सकती हूँ। दैट बिकम्स एन इंडिकेटर। इज दिस फाइन विद एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, अब ma'am. देखो ये जो चार्ट है, इसमें कैन यू टेल मी कि दो कौन से इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं? क्या लिखा है टेबल में, देखो। Weight लेंथ and एंड weight. वेट। ठीक है, तो इसमें उन्होंने दो इंडिकेटर्स को कौन से को लिया हुआ है? वेट और फॉर लेंथ। ओके, दैट मींस दे आर कमेंटिंग दैट व्हाट शुड बी द वेट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पे एज नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने जो दो आपके बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, वेट और हाइट, उनको आपस में जोड़ के देखा है कि क्या क्या होना चाहिए। So this is also one type of indicator. So normal indicators in case of children as defined by WHO are weight for age, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। You also have height for age। जैसे अभी किसी ने बोला कि कम से कम उसकी एज तो पता होनी चाहिए, तो अगर वो बच्चा 8 महीने का है और उसकी हाइट मान लो 65 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, और इस बच्चे के 55 है या 80 है, सो यू आर रिलेटिंग दैट हाइट विद द एज ऑफ द चाइल्ड। सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इन केस ऑफ किड्स इज व्हाट? हाइट फॉर एज। द थर्ड वन जो आपको यहाँ पे टेबल में दिया होता है, दैट इज नोन एज वेट फॉर हाइट। इज दिस क्लियर? वेट फॉर हाइट, बिकॉज यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि बच्चे की हाइट के हिसाब से बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई सेड दैट दी हाइट ऑफ द चाइल्ड इज 65 सेंटीमीटर्स, और इसमें भी बॉयज और गर्ल्स अलग अलग हैं, तो ये 65 सेंटीमीटर्स हैं। सो कैन यू टेल मी कि गर्ल्स के हिसाब से क्या वेट होना चाहिए? 7.3. 7.1। आई थिंक दैट इज फॉर बॉयज 7.1 होगा, ठीक है, पहला कॉलम गर्ल्स का है, ठीक है। या सो नाउ यू नो कि अगर एक लड़की है, राइट, 2 साल तक का चार्ट है ये, तो अब आपको पता है कि अगर ये लड़की है 2 साल से नीचे है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 65 है, तो हाइट के हिसाब से उसका वजन कितना होना चाहिए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखो हर एक जो इंडिकेटर है ना, ठीक है, वो एक अलग चीज बताता है। देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिकेटर वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। अब ये जो 3 इंडिकेटर्स की मैंने बात की, आपने अंडरवेट का नाम सुना है कि बच्चे इतने अंडरवेट हैं, राइट? Yes, ma'am. अंडरवेट हम किसको रेफर करते हैं? वेट फॉर एज। यू कैन राइट इट डाउन। तो जब किसी बच्चे का एज के हिसाब से वजन कम हो, वो पहले वाला टेबल जो हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है, तो मान लो उसकी 4 साल है, 2 साल है, कुछ महीने हैं, उसका वजन इतना होना चाहिए, लेकिन WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका वजन उसकी उम्र के हिसाब से कम है, तो उसको हमने क्या बोला? अंडरवेट, ठीक है। सो यू कैन राइट अंडरवेट इज, sorry I completed, yeah, so underweight is nothing. Underweight refers to low
वेट फॉर एज, ठीक है। देन आपने नाम सुना है स्टंटिंग का, स्टंटिंग सबको पता है, Yes, राइट। ma'am. सो दैट इज लो हाइट फॉर एज, जब बच्चे की एज के हिसाब से उसकी हाइट कम है। तो मान लो वो बच्चा 18 महीने का है और उसकी हाइट मान लो 80 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन इस बच्चे की हाइट 60 सेंटीमीटर्स है, तो टेक्निकली आप उसको क्या बोलोगे, दैट द चाइल्ड हैज स्टंटेड ग्रोथ। हम जनरली ये बोलते हैं ना कि बच्चे की ग्रोथ बड़ी स्टंटेड लग रही है। तो स्टंटिंग का क्या मतलब होता है, जब बच्चे की हाइट उसकी एज के हिसाब से कम है। Now there is third very important thing which you will realize, that is wasting. And wasting is very important because that depicts low weight for height. जो ये वाला टेबल है आपका, क्योंकि इसमें आपने वेट को किससे रिलेट किया है, हाइट से। तो जब किसी का वजन उसकी हाइट के हिसाब से कम है, तब आप उसको क्या बोलते हो, वेस्टिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज यू नो जो WHO की डेफिनेशन है ना मैल न्यूट्रिशन की, सीवियर या एक्यूट whatever, that takes into account this particular indicator. This is fine. तो जब WHO डिफाइन करता है सीवियर मैल न्यूट्रिशन या मॉडरेट मैल न्यूट्रिशन को, तो वो कौन सा इंडिकेटर लेता है, वेस्टिंग। बिकॉज सी एक्चुअली दिस इंडिकेटर इज टेकिंग बोथ क्रॉनिक इंडिकेटर ऑल्सो एंड एक्यूट इंडिकेटर। और यूजुअली क्या होता है कि भाई आपकी एज के हिसाब से आपका वजन कम ज़्यादा हो सकता है। हाइट के साथ क्या मसला है, जितना अटेन कर लिया उतना तो कर लिया ना, छोटे तो नहीं हो जाओगे, राइट। फिर उसके बाद किस चीज़ पर फर्क पड़ता है कि आपका हाइट के हिसाब से आपका वजन कैसे जा रहा है। इज दिस क्लियर? अदर्स ऑल्सो प्लीज रिस्पॉन्ड, बिकॉज ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। इज दिस फाइन? Yes, ma'am. डू आई नीड टू Yes. रिपीट एनीथिंग? Okay, so height, weight for height is an important indicator, particularly in case of children, क्योंकि जब WHO ने मैल न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है, तो वो कौन सा इंडिकेटर लेता है, वेट फॉर हाइट। तो अगर किसी बच्चे का हाइट के हिसाब से वजन कम निकलता है, तो टेक्निकली यू नो indicate that child to be a wasted child, wasting, ठीक है। तो ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड मार्क्स हो गए हाइट एंड वेट। उसके अलावा भी इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन्फेंट्स, देयर आर सम अदर मेजरमेंट्स आल्सो व्हिच आर इंपॉर्टेंट, जो कि ये वाली है। But all these dimensions are first related to the age, height and weight, or it's only the first height will measure. मीन्स व्हाट, कैन यू I जस्ट mean to रिपीट say, दैट? I mean to say, like these all dimensions are also related with the age only. Like, what is the? It's only the height which is given. As per this height, this should be the weight. But the height is also proportional to the age. क्या, तो अगर आप हाइट को खाली एज के हिसाब से ले रहे हो तो आप स्टंटिंग देख रहे हो, Okay. है ना। हर एक इंडिकेटर का हाँ, अलग इंपॉर्टेंस हो गया ना। हाँ जी मैम। अब देखो वेट तो आप दोनों में देख रहे हो, हम्म। लेकिन ये तो फर्स्ट वाले में आप वेट देख रहे हो एज के हिसाब से। तो अगर किसी का एज के हिसाब से वेट कम है तो आप उसको टेक्निकली अंडर वेट कहोगे। हम्म। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जब आप एज को देख रहे हो हाइट के हिसाब से, है ना, तो यहाँ पे आप उसकी वेस्टिंग देखोगे। तो कई बार हो सकता है कि बच्चे की एज के हिसाब से उसका वजन ठीक है, आप एज पे गए कि बच्चा भैया 8 महीने का है, उसका वजन इतना होना चाहिए, इतना, इट इज फाइन। बट देन यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज दैट मे बी उस बच्चे की हाइट इतनी नहीं है, और अगर हाइट Okay. छोटी है तो हो सकता है हाइट के हिसाब से वो बच्चा ओवरवेट कैटेगरी में आ रहा हो, हम्म। ठीक है। या वाइसा वर्सा, भाई बच्चे की लंबाई भी बहुत अच्छी है तो उसके हिसाब से मे बी द चाइल्ड इज नॉर्मल, ठीक है। सो यू हैव टू सी Yes. दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इंडिकेटर्स। ओके, ओके, Thank you, ma'am. yeah. Now the next important aspect is also related to the fact that there are certain others indicators or basic measurements which are important in particularly children, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा हेड, चेस्ट एंड mid upper arm circumference, ठीक है। तो particularly these are the measurements which hold importance particularly in case of infants। तो हम एज, हाइट ये सब कुछ तो देखते ही हैं, बट उसके अलावा इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सी दीज ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यू मेजर द मेजरमेंट ऑफ द हेड एंड चेस्ट ऑफ द चाइल्ड
अगर आप बहुत इनिशियल पीरियड्स में बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हो, तो वो बच्चे का हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी देखते हैं, इवन at the time of birth, they will note down the chest and head circumference, because usually by default what it is seen is कि जब बच्चे का birth होता है उसका head circumference ज़्यादा होता है chest circumference से, but slowly what happens is कि जैसे जैसे growth बढ़ती है बेबी की, तो उसका head circumference tends to get stabilized और chest circumference बढ़ने लग जाता है ना, so they see this proportion also, ठीक है. But the next most important measurement in case of children, particularly till preschool age, is what we call as MUAC. Okay, so what is MUAC? MUAC refers to mid upper arm circumference. ठीक है, इसको प्लीज मार्क कर लेना. ये एक तो ना ये इमेजेस थोड़ी ऊपर नीचे है, ये चेस्ट और हेड है. Excuse me, yeah. So this is mid upper arm circumference. ठीक है, तो mid upper arm circumference कैसे लेते हैं? Usually, most of the people do error in taking mid upper arm circumference. So actually, mid upper arm circumference क्या होता है? This one, ये वाली figure. There is some disturbance. Can you please? Yeah. So ये वाली जो image है, this is your mid upper arm circumference. Okay. So you can see कि actually mid upper arm circumference लेने का एक correct technique क्या होता है? You see the shoulder point of the child, ठीक है, and you mark the elbow point of the child. ठीक है, तो बच्चे का जो शोल्डर पॉइंट होता है और जो एल्बो पॉइंट होता है, आप उसका एग्जैक्ट हाफ लेते हो, राइट, एंड वहां पे यू प्लेस दिस इंची टेप और व्हाटएवर टेप, एंड देन यू सी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द चाइल्ड. ओके, so in public health nutrition जहाँ पे we have to do studies at a larger level, we have lot of children to be covered, this is a very good indicator to assess nutritional status, because it is a simple technique ना, आपको सिर्फ एक measuring tape चाहिए and you will be able to assess the child's nutritional status. So usually we say कि 12.5 से कम का अगर MUAC है, ठीक है, so that is depictive of undernourishment. ठीक है, so अगर वो 12.5 से ऊपर है, so it is fine, यहाँ पे दिया हुआ देखो. अगर 12.5 से कम का है, so that is an indicator of wasting. Okay, so even without assessing the height and weight also, अगर किसी बच्चे का MUAC 12.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, so you can classify that child to be a wasted child, and wasted child means that the child is undernourished. Is this fine? Anything which I need to repeat in that? How to measure that? You said You can use a arms of. simple measuring tape, ठीक है, हाँ. बट हाँ, मेजरिंग टेप जो होती है आप वो भी ले सकते हो, नहीं तो इसकी ना एक पहले एक ट्राई कलर टेप भी आती है, शाकिस टेप भी बोलते हैं, और WHO की भी टेप है. तो उसमें क्या होता है कि वो जो टेप है दैट इज ट्राई कलर, वाई, बिकॉज ये एक बहुत बेसिक आपको चीज दे रहे हैं कि 12.5, तो उसमें क्या होता है 3 कलर बने होते हैं, तो क्विकली इफ इट कम्स ऑन ग्रीन दैट मींस चाइल्ड इज नॉर्मल, अगर येलो या ऑरेंज पे आता है तो दैट मींस द चाइल्ड इज इन डेंजर, एंड अगर रेड में है तो डेफिनेटली मतलब 12.5 सेंटीमीटर से कम. ठीक है, so this you can measure using a tape, but yes you have to be very specific, because most of the people take this circumference at a wrong level. उनको लगता है कि ऊपर एल्बो से ऊपर कोई भी पॉइंट है वहां पे बस टेप लगा के देख दो तो वो MUAC हो जाएगा, वो गलत है. ओके, मिड अपर आर्म का मिड लेना है, और अपर आर्म का मिड कैसे होगा? जब आप एल्बो पॉइंट और शोल्डर पॉइंट का एग्जैक्ट हाफ. ठीक है, सो दैट इज Okay. Yeah. Thank you. Ma'am, what is the age over here for 12.5 centimeters? What's यूजुअली the वैसे अप टिल 5 years ऑफ एज. ठीक है, up to तुम्हारे 5? सिलेबस में अभी इतना ही है, लेकिन अगर आप WHO के चार्ट्स पे जाओगे वहां पे यू विल से दैट दे हैव रिलेटेड दिस MUAC विद एज आल्सो. So for higher ages also, if you need to go on, then you need to download their tables and interpret the tables. ठीक है, बट यूजुअली यहाँ पे सिर्फ एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. तो अप टिल द एज ऑफ 5 years जो यूजुअली से कि 12.5 से अगर नीचे है, बिकॉज 5 साल से पहले जो तुम्हारा सबक्यूटेनियस फैट होता है ना मिड अपर आर्म का, वो मोर और लेस कांस्टेंट रहता है, सो दैट इज व्हाई. ओके, Right, ma'am. Right. या the other important measures they have given is skin fold thickness. तो आपने ये आजकल ना अडल्ट के केस में भी देखा होगा, क्योंकि आप इससे क्या मेजर करते हो, आप देखते हो कि आपका बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट का लेवल क्या है. आई थिंक आई एम श्योर सम ऑफ यू हु माइट बी गोइंग टू जिम्स, ठीक है, या अपना न्यूट्रिशन असेसमेंट कराने जाते हो, तो कैलिपर्स के थ्रू वो आपकी स्किन को ऊपर करके फिर देखते हैं कि नीचे सबक्यूटेनियस फैट की परसेंटेज क्या है. सो देयर आर डिफरेंट साइट्स जहाँ पे वो चेक करते हैं, दे लेट यू नो दैट आपकी बॉडी में फैट का परसेंटेज ज़्यादा है. Okay, so that is all related to your fat reserves of the body. Okay, so these are some of the basic measurements which they have discussed in discussing the nutritional status, particularly in case of children.
यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूँ? ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये ग्रोथ मॉनिटरिंग वेट फॉर हाइट आई हैव एक्सप्लेन टू दैट। ओके, तो ये सेक्शन यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड इसके भी चार्ट्स होते हैं। सो आई टोल्ड यू अगर टाइम होगा तो आई शो यू द चार्ट्स आल्सो, बट दैट इज टुवर्ड्स द एंड। Then we are coming on to clinical. So I have already told you कि डायरेक्ट मेथड्स कौन से होते हैं, ए बी सी डी। तो ए में हमने जो मेथड्स पढ़े हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, एंथ्रोपोमेट्री। बट यू नो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमने एंथ्रोपोमेट्री पढ़ा है बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में। बड़ों के कॉन्टेक्स्ट में भी यू नो लाइक यू एंड आई, है ना, हम लोगों का भी तो न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस होता है ना, और हम भी किसी को देख के बोलते हैं कि नहीं यार आप तो अंडर वेट हो, या आप तो नॉर्मल हो, या नहीं नहीं आप तो ओवरवेट एंड ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो। तो यू नो इन आवर केस आल्सो वी हैव मेजर्स लाइक हाइट एंड वेट, राइट। वी आल्सो हैव स्किन फोल्ड यू नो थिकनेस, जो हम पर्टिकुलरली बॉडी फैट को डिपिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बट इन आवर केस वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दैट इज यूज्ड एज अ हॉलमार्क टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस, दैट इज व्हाट इज नोन एज टू बी BMI. What is BMI? Anyone? Body mass Body index. mass Mass index. index. How do you calculate that? That's no idea. Weight by height square, ma'am. Yeah. Weight in kg and height in meter square. Yeah. So weight upon height in meter square. So those of you who don't know, just like that I'm telling you. मान लो किसी का वजन 60 kg है, 60, ठीक है, और उसकी हाइट 162 है, ठीक है, in centimeters. So how you're going to calculate BMI is 60 upon 1.62 because meters में मुझे height चाहिए. तो 60 divided by 1.62 का स्क्वायर. Is this clear? ठीक है, तो इनफैक्ट आप लोग अपना भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो वट एवर कम्स, ओके, उसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो बीएमआई का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज यू आर टेकिंग योर वेट इन केजीज एंड योर हाइट इन मीटर स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी द कट ऑफ फॉर बीएमआई? बीएमआई का जो कट ऑफ है वो अभी हम ये यूनिट 6 में इन्होंने कहीं बोला हुआ है कि बता रखा है, जब हम करेंगे तो मैं बता दूंगी। बट बीएमआई का कट ऑफ यूजुअली होता है 25 फॉर इंडियंस, ठीक है। तो WHO गिव्स डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर पीपल नॉट एशियंस, ठीक है। तो यूरोपियंस हैं, यूएस यूके, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। एशियंस लाइक पाकिस्तानीज, इंडियंस और चाइनीज, जापानीज, वी आर ऑल एशियन कंट्रीज, राइट। तो हमारा जो बीएमआई कट ऑफ है वो अलग है। रीजन भी कि हम एशियन है, हमारी एथनिसिटी ही ऐसी है विच मेक्स अस मोर यू नो prone towards developing cardiometabolic diseases. We have highest rates of diabetes, hypertension, etc. Right? तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई जो बाकी वर्ल्ड के लिए अलग है, लेकिन आपके लिए तो थोड़ा कम ही रखो, क्योंकि आप पहले ही हाई रिस्क पे हो बिकॉज ऑफ योर एथनिसिटी। सो हमारे लिए जो बीएमआई का कट ऑफ है वो 25 है। ओके, सो 25 मतलब अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया और आपका जो बीएमआई है वो 25 या 25 से ज़्यादा निकल के आता है, दैट मीन्स यू आर इन ओबीस कैटेगरी। फॉर नॉन एशियन दिस कट ऑफ इज 30। यू कैन सी द डिफरेंस। अगर आप यूके हो, यूएस हो, यूरोपियन हो, तो उसके केस में अगर आप सपोजिंगली आई टेक एन एग्जाम्पल 27 निकल कर आता है बीएमआई, राइट। तो अगर आप नॉन एशियन हो तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आओगे, राइट, 27, बिकॉज वहाँ पे ओबेसिटी कितना है, 30 से ऊपर। पर अगर आप इंडियन हो तो आप 27 पे कौन सी कैटेगरी पे आ गए, ओबेसिटी की कैटेगरी में आ गए। इज दिस फाइन? वो चार्ट में कुछ और दिया है। क्या दिया? तो पहला वाला जो चार्ट है ना बीएमआई का, उसमें हाँ, लेस देन 23 और ऐसा लिया है। हाँ, तो वो बाकी की भी तो क्लासिफिकेशन है ना, यहाँ पे तो मैं तुमको सिर्फ ओबेसिटी की बता रही हूँ। जैसे 23 तो 25 ओवरवेट हो गया, ये दिया होगा। हाँ। 18.5 टू 22.5 नॉर्मल दिया होगा, और 18.5 से कम अंडरवेट दिया होगा। ठीक है, तो वो तो पूरी क्लासिफिकेशन है ना। यहाँ पे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ओबेसिटी का लेवल क्या है। ओके, थैंक यू। Then so there might be some pros and cons related to BMI, like people say कि भाई BMI gives you a composite number, it does not differentiate between your lean mass and your fat। जैसे हो सकता है कि दो लोगों का BMI सेम निकल के आ रहा है, पर भाई एक ही बॉडी में फैट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, एंड दूसरा ही और शी इज़ एन एथलीट और someone who is very very involved into physical activity या जिमिंग या whatever, and उसके केस में उसको हो सकता है कि मसल का मास ज़्यादा हो, बिकॉज दोनों ही चीज़ें तो आपके वेट में रिफ्लेक्ट होगी। But after these things also, we do not have any better indicator than this. So in case of adults, we usually go in for BMI.
बच्चों के केस में भी बीएमआई होता है 19 साल से कम, जैसे हमने बोला ना वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, उनके केस में भी चौथा इंडिकेटर होता है बीएमआई। बट बिकॉज ईच बच्चा हैज हिज और हर ग्रोथ पैटर्न, ठीक है, तो उनके केस में हम बीएमआई को रिलेट करते हैं एज के साथ। तो डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे आप देखोगे वेट फॉर हाइट है, वेट फॉर एज है, हाइट फॉर एज है, एंड दे हैव बीएमआई फॉर एज। ओके, बिकॉज बच्चों के केस में दिस बीएमआई हैज टू बी रिलेटेड टू द एज ऑफ द चाइल्ड। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन केस ऑफ अडल्ट, हम लोगों के केस में दिस बीएमआई इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर एज। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 25 के ऊपर आप ओबीज हो, तो चाहे आप 20 साल के हो, आप 40 के हो, आप 60 के हो, आप 100 के हो, 25 के ऊपर मीन्स ओबेसिटी। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन द जेंडर। सो फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, दिस इज इंडिकेटर दैट इज being used. Is this fine? Is this clear? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट, कुछ डिस्कस करना है? Does age also plays a role in this BMI indicator? Age does not play any role, but studies have shown that जैसे जैसे आप एज करते हो, है Hmm. ना, यूजुअली आपका बीएमआई बढ़ता है अगर आप फिजिकली एक्टिव ना रहो। Hmm. इफ यू लुक एट योर पेरेंट्स और व्हाट वी वर इन आवर 20s मे बी, बट Yes, इफ यू आर ma'am. नॉट वेरी फिजिकल, बिकॉज यू टेंड टू पुट ऑन वेट ना, और अगर आप टेंड टू पुट ऑन वेट कर रहे हो तो मतलब आपके बीएमआई पे इफेक्ट आएगा। अब जैसे ये क्यों इंडिकेटर अलग दिया गया एशियंस के लिए, बिकॉज हमारी एथनिसिटी ऐसे है दैट वी टेंड टू पुट मोर वेट, वी आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो इसीलिए हमने बोला कि बाकी सबके लिए तो भाई 30 पे इंडिकेटर है। अब जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि आप 100 लोग हो, 100 में से पास परसेंटेज 33 है, ठीक है, और फिर मैं बोलूँ कि नहीं आपके लिए तो भाई 50 है, ज़्यादा मेहनत कौन करेगा? 50 वाला ना, Yes. है ना। तो इसलिए उन्होंने बीएमआई कैटेगरी को हमारे लिए कम कर दिया कि भाई अगर आपका 25 के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यू विल हैव रिस्क ऑफ डेवलपिंग ये सब चीज़ें। तो ज़रा सा भी 25 के ऊपर हो तो अपने आप को मेंटेन करो, विच इज़ अ लिटिल रिलैक्स्ड वैल्यू फॉर अदर एक्टिविटीज। Thank you, ma'am. ठीक है, ओके। और कुछ, और कोई चीज़ जो याद आ रही हो? ग्रेट। सो दिस इज अबाउट अडल्टहुड। Clinical का you can see that I have already told you. So this is one of the simplest method, you just have to see। और हमें पता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आंखों में पीलापन है, ठीक है, आपके दिमाग में क्या आता है कि किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है? बताओ। liver issues. Iron. लिवर Iron. इश्यूज, है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई बाइटॉट स्पॉट है या नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो दैट इज बीइंग रिलेटेड टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। So we have certain sign and symptoms which are particularly related to some of the deficiencies or excessism in the body। okay, so you relate that। but देखो क्लिनिकल के साथ मैंने पहले भी बोला, अब जैसे एक ने बोला लिवर और एक ने बोला कि नहीं यार आयरन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब पीलापन है, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी क्यों है, मुझे ये दिख रहा है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन। सो टू कंफर्म दैट यू नीड टू गो इन फॉर बायोकेमिकल। इज इट फाइन? तो हर एक इंडिकेटर का, हर एक उसका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। एंथ्रोपोमेट्री के साथ अपने मसले हैं, क्लिनिकल के साथ अपने हैं कि भाई दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट मेथड। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करने का। बट देन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, एक तो एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। मैं आपको जाके भेज दूंगी तो इवन मैं भी चाहूंगी तो आई माइट मेक अ रॉन्ग डायग्नोसिस बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। सो मे बी आई नीड टू टेक सम फिजिशियंस हेल्प, a person who is very very personified and he has the experience of detecting this, नहीं तो मैं गलत बोल कर आ जाऊंगी। ठीक है, सिमिलरली एंथ्रोपोमेट्री के साथ क्या मसला है, वी हैव मेजरमेंट्स, वी हैव रेफरेंस स्टैंडर्ड, वी हैव एवरीथिंग। भाई जिसने हाइट वेट लिया उसने हाइट और वेट ही गलत ले लिया है, तो फिर आप क्या करोगे? सो दैट इज व्हाई वी से दैट इन केस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर हाउ यू आर टेकिंग द मेजरमेंट्स। 1 सेंटीमीटर भी तुम इधर उधर करोगे तो बंदे का न्यूट्रिशन स्टेटस बदल जाएगा। एंड दैट इज व्हाई जब भी हम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, पीपल हु आर इन पब्लिक हेल्थ एंड सो ऑन, दे आर बीइंग ट्रेन्ड, हाइट एंड वेट इज आल्सो एन आर्ट। ठीक है, उसको भी जितना एक्यूरेटली रहोगे उतने ही सही आपके रिजल्ट्स आएंगे। मैंने कई लोगों को बोला है, मतलब हाइट और वेट लेते हुए मिनिमम क्लोथिंग होनी चाहिए, सीधे खड़ा होना चाहिए, नहीं देखना था, वो राउंड ऑफ करने में ही एरर्स कर देते हैं। So you have to be very very specific that how you are taking these measurements। Then you also have to keep in check on the measuring machine। आपकी वेइंग स्केल ही खराब है या वेइंग स्केल ही आधे किलो का एरर दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए जब आप किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करें।
Okay, so anyhow we have discussed optometry and then we have also discussed clinical. Okay, यहाँ पे फिर इन्होंने ये तो इन्होंने ये डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स दिए हैं, आपको एटलीस्ट 4-5 के पता होने चाहिए, तो प्लीज इसको एग्जाम में लर्न करके जाना। ठीक है, सो दैट इज योर क्लिनिकल। अभी बायोकेमिकल दिख रहा है सबको? ठीक है, अभी बायोकेमिकल क्या आ गया? दिस बायोकेमिकल इज रिलेटेड टू टेस्ट। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि टेस्ट बायोकेमिकल इज द मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, और मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, अभी एंथ्रो को भूल जाओ, क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल को देखो। बायोकेमिकल आर द फर्स्ट इंडिकेटर्स इन योर बॉडी, राइट? तभी हम बोलते हैं ना, हर 6 महीने बाद बी रेगुलर, आप अपना चेकअप टाइम पे कराओ, क्योंकि देखो आपकी बॉडी में कुछ भी कम बढ़ रहा है ना, सबसे पहले आपके ब्लड, यूरिन और फीसेस में आ जाएगा। क्यों? क्लिनिकल साइंस टेक टाइम टू इवॉल्व, राइट? कोविड में भी हम बोलते थे ना कि भाई 4-5 दिन देखो, क्योंकि जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है वो 4-5 दिन बाद आते हैं। ठीक है, अगर किसी ने मीजल्स वगैरह का देखा हो, तो उसमें भी कोई फर्स्ट डे रैशन भी हो जाती है, बंदे में इन्फेक्शन होता है, राइट? बट इट इज लाइक 2 days or 3 days, initially, rashes and everything will develop. Why? Because clinical signs and symptoms will take time to evolve. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी डेफिशिएंसी उस दिन से शुरू हुई है। हो सकता है मैं आज से एनीमिक हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मे बी 15-20 days बाद आई एम फीलिंग कि यार मेरे को तो बहुत थकावट हो जाती है, यार मेरे चेहरे पे पीलापन आने लग गया है, तो वो डेफिशिएंसी तो पहले थी ना। अगर मैंने अपना आई माइट हैव बीन रेगुलर विद माय चेकअप्स एंड एनीथिंग, तो मुझे इनिशियली पता चल जाता कि हाँ, अब जैसे कोलेस्ट्रॉल कई लोग चेक नहीं कराते ना, राइट? जब उनको वो सांस चढ़ता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, या कुछ लिपिड से रिलेटेड कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तब दे गो एंड दे फाउंड आउट कि वाह, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई था। सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्लिनिकल और बायोकेमिकल में, बायोकेमिकल आर दी अर्लीस्ट इंडिकेटर, दे आर दी मोस्ट एक्यूरेट, बट द थिंग इज दैट दे रिक्वायर टेक्निकल हेल्प एंड दे आर एक्सपेंसिव। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कट ऑफ दे रखे हैं, बिकॉज बायोकेमिकल इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू द कट ऑफ, राइट? अब जैसे इन्होंने जो फर्स्ट दे रखा है वो हीमोग्लोबिन है, तो भाई आई एम एन अडल्ट वुमेन हु इज नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग, मैंने अपना हीमोग्लोबिन चेक कराया, तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से मेरा कितना आना चाहिए? 12। ठीक है, मेरा 10 आया, तो दैट मीन्स आई एम राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कट ऑफ्स व्हिच वी यूज, एंड ज़्यादातर जो कट ऑफ्स हैं वो आप डब्ल्यूएचओ के या इन सब चीज़ों के लेते हो। कोलेस्ट्रॉल में आप एटीपी का लेते हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए यू हैव आईडीएफ, so you have different cutoffs which are available, and you need to compare your biochemical parameters with that. So that is the thing about biochemical. Is this fine with everyone? मैम ये टेबल को याद रखना है क्या देखो एग्जाम के याद लिए? तो नहीं रखना, बट देखो अगर बायोकेमिकल पे आपको एक शॉर्ट नोट आता है ना, तो इट इज ऑलवेज गुड कि एटलीस्ट एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। ओके, ठीक है, और सबसे इजी होता है आपका ये आयरन का याद करना। आयरन वाला, यस। एंड इसमें ना आई वांटेड टू हैव अ फोकस ऑन वन थिंग, कैन यू ऑल सी दिस टेबल, राइट? एंड कैन यू सी कि नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग के लिए कट ऑफ कितना है हीमोग्लोबिन का? 12। 12. 12, right? Can you tell me cut off for pregnant women? 11। 11. 11. आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है Hmm. Yes. क्या? It should be more. It should be more. Anyone else? क्योंकि प्रेगनेंसी में तो हम बोलते हैं कि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो हम नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग के लिए 12 कह रहे हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी हम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कह रहे हैं कि 11 है। सो इज देयर समथिंग रॉन्ग, और एनी वन ऑफ यू नो दी? A normal lady, due to periods, the iron might reduce, but during pregnancy, it might not. So, right? नहीं होता है, ठीक है, और Mm. कुछ? बट उतना ही It आयरन इसका is लॉस हो taken जाता है ड्यूरिंग in द डिलीवरी, general population India का लेके this is the average. तो वो It तो was एवरेज stated नॉन around प्रेग्नेंट के this. लिए भी होता है। So generally it अब goes down only. सी जनरल पॉपुलेशन तो एनएफएचएस डेटा ये कह रहा है कि 80% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर एनेमिक, तो मैं इसको 8 तो नहीं कर सकती कि भाई जनरली लोगों का इतना नहीं होता है तो 8 कर दो, राइट? इफ यू रिमेंबर प्रेगनेंसी में आई आस्क्ड यू टू रिमेंबर वन टर्म, हीमोडाइल्यूशन। यू रिमेंबर? मैंने कुछ बताया था कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यू रिमेंबर? Yes. एंड मैंने बोला था इसके ऊपर नोट Yes. रखना कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, राइट? तो दिस हैज अ कनेक्ट विद हाँ. दिस, ठीक है? I'll give you an example. Now your blood volume is increasing. This example, okay. So you can consider that you have two glasses, ठीक है? एक is full filled of water and एक is आधा पानी, ठीक है? तो एक ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है और दूसरा ग्लास is only half a water, ठीक है? एंड दोनों में ही मैं एक एक चम्मच नमक डाल रही हूँ,
ज्यादा डाइल्यूटेड कौन सा होगा? फुल ग्लास ना, Yes, ठीक है। yes. और Full glass. कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होगा? जो आधा भरा है। सेम इज द Half केस इन glass. दैट, ओके। बिकॉज इन केस ऑफ प्रेगनेंसी हीमोडाइल्यूशन अकर्स, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है दैट लीड्स टू डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग के लिए हम 12 नॉर्मल मानते हैं, प्रेगनेंसी में हम 11 मानते हैं। इज दिस क्लियर? तो इफ अ नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टेटिंग women has a 11 का No, ma'am, please IUD. repeat. So in case of a woman who is non-pregnant and non-lactating and she has hemoglobin of 11, you will consider her to be anemic. But if she is pregnant, right, and she has hemoglobin of 11, she will be considered normal. क्योंकि उसके केस में क्या हो रखा है, उसकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये जो ब्लड वॉल्यूम है दैट हैज रिजल्टेड इन हीमोडाइल्यूशन, ब्लड डाइल्यूशन, रेड ब्लड सेल्स का डाइल्यूशन हो रहा है बिकॉज ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है। तो उसके केस में जो 12 नॉन प्रेग्नेंट में हम सेफ मानते थे, इसके केस में हम 11 को सेफ मानेंगे। इज दिस क्लियर? Okay, thank इज you. दिस क्लियर? Yes. या एनी डाउट्स? ठीक है। No, ma'am. Okay, and the last one is your dietary. तो पता है आई वांटेड टू टेल दिस एबीसीडी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बड़ा ना एब्रप्टली एंथ्रो आ गया, फिर बायोकेमिकल आ रहा है, फिर पता नहीं क्लिनिकल कहाँ से आ रहा है। तो दिस इज योर एबीसीडी, ओके। सो डी में द लास्ट वन इज डाइटरी, एंड बीइंग द न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ऑन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जिसको मार्क कर लो, 24 आवर डाइटरी रिकॉल, ठीक है। हैव यू ऑल मेड अ नोट ऑफ दिस? इज इट क्लियर? अब देखो कि क्या हो रहा है, अभी मैं इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हें दोबारा भी बताऊंगी। अब देखो, डाइटरी रिकॉल क्यों इंपॉर्टेंट है कि फॉर मी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि भाई मुझे ये जानना है कि आपका डाइट में क्या गड़बड़ चल रहा है ना, एंड दैट आई बी यूजिंग, आई बी असेसिंग यूजिंग अ मेथड। सो देयर आर टू हॉलमार्क मेथड्स वी यूज इन डाइट। द फर्स्ट वन हैज बीन एक्सप्लेन, दैट इज 24-hour dietary recall. Just make a note and I'll just explain it now, okay? 24-hour dietary 24-hour dietary recall, ठीक है। अब 24-hour dietary recall और दूसरा होता है FFQ, which is I don't know given or not, but you can make a note. That is known as food frequency questionnaire. How many of you are doing MSc also along with this? Okay. Ma'am, So there what are is two. it? Food frequency question. क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना बिकॉज आई हैव टाइप दैट, ठीक है। सो 24 आवर एक्टिव कॉल एंड एफएफक्यू क्वेश्चन। तो अब क्या है, एक बच्चा तुम्हारे पास आया, वही 4 साल की लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने उसका हाइट वेट लिया, आपने बोला कि भाई इस बच्चे का तो वजन कम है, एमयूएसी भी कम है, क्लिनिकली मैंने देखा तो भाई बच्चा थोड़ा स्लगिश भी लग रहा है एंड वटेवर। मैंने उसका शायद बायोकेमिकल टेस्ट करा लिया और उसमें कुछ कुछ निकल के आया। अब आई वांट टू सी दैट हाउ दिस चाइल्ड इज ईटिंग, बिकॉज देन ओनली आई वुड बी एबल टू मेक माई रिकमेंडेशंस ना कि बच्चे की डाइट में ये कम है या क्या है। या मान लो बच्चा एनीमिक निकला, तब भी मुझे तो ये जानना होगा ना कि भाई उसकी डाइट है कैसी जो बच्चे को एनीमिया हो गया। So that I do by a method which is known as 24-hour dietary recall. Now it is a very robust method but an approximation, quantitative technique है, quantity देखनी होती है हमें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, quantitative method। अब इसमें क्या होता है, मैं जैसे आपका रिकॉल ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, या इस बच्चे का ले रही हूँ, तो आई मेक अ नोट कि कल सुबह से लेके लास्ट मील तक इस बच्चे ने क्या खाया। अब अगर वो बच्चा है तो खुद से तो नहीं बता सकता, यू विल ऑब्वियसली टेक द हेल्प ऑफ द मदर, राइट। सो शी विल से कि भाई ये सुबह उठी थी, इसने शायद आधा ग्लास दूध पिया था, मेक अ नोट, ठीक है। ब्रेकफास्ट में शायद इसने चीला खाया था और साथ में मे बी हाफ अ कप टी, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेक अ नोट, ठीक है। ऐसे करते करते आप हर चीज़ जो उसने खाई है या पी है एक्सेप्ट फॉर वाटर, यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ दैट, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। इसमें लोग बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशंस करते हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज फिर तो आपने गलत डेटा लिया, ठीक है। और 24 आवर रिकॉल के साथ सबसे बड़ा मसला क्या है, ये मेमोरी पे बेस्ड है। मैं आपको बोलूँ कि भाई कल आपने सुबह क्या खाया था, तो हाफ ऑफ अस डोंट इवन रिमेंबर कि हमने क्या खाया था, है ना। अब ये मैं जानबूझ के भी कर सकती हूँ कि भाई मैं आपको क्यों बताऊँ कि मैंने क्या खाया था, ठीक है। अब हो सकता है कि वो जस्ट अ दिस थिंग कि वो बेचारे अडल्ट ने 4 रोटी खाई हो। अब क्योंकि उसको पता है कि तुम तो भाई पूछ रही हो कि मैंने क्या खाया है, तो वो एक अपने आप से कम करके बताएगा, मे बी ही डजंट वांट टू शेयर और ही इज लिटिल सेंसिटिव अबाउट दैट, तो वो बोलेगा कि नहीं जी 2 ही खाए थे।
सो दिस मेथड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर सब्जेक्ट, वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. बट द स्मार्ट पार्ट ऑन योर एंड इज व्हाट, दैट हाउ यू आर कलेक्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन. अभी मदर ने बोला कि हाँ सुबह चीला खाया था, फिर दोपहर को उसने राजमा चावल खाए. आपको प्रोबिंग करनी पड़ती है, आपको उसको बीच में बोलना पड़ेगा कि अच्छा फिर सुबह खाया था और फिर सीधा दोपहर को खाया, बच्चे ने सुबह कुछ बीच में कुछ नहीं खाया. देन शी माइट कम कि हाँ शायद वाटरमेलन खाया था बीच में, ठीक है, या हाँ शायद इसने बीच में 2-3 बिस्किट्स भी खा लिए थे, या आई गेव हर सम खीर और समथिंग बनाना, सम फ्रूट इन बिटवीन ऑल्सो. तो यू हैव टू कीप ऑन प्रोबिंग टू फेच अ रियल डेटा. फिर उसके बाद ये टेक्निक आप एमबीसी लेवल पे सीखते हो कि आप इन सब चीज़ों को जो भी खाया है हाउस होल्ड मेजर्स में, एक चपाती, एक कटोरी, whatever, you convert that into grams, and using composition table you actually calculate the total calorie, protein, iron कितना, ठीक है, and you compare that with वो जो ERRDA टेबल हमने देखी. Is this fine? ठीक है, and this has to be taken in much details. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने मुझसे पूछा कि भाई कल सुबह क्या लिया था, मैंने कहा चाय. अब एक तो हो गया कि चाय, वहीं पे बात खत्म हो गई, आपने नोट कर लिया कि चाय. लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो गए और आप सीरियसली ले रहे होगे तो आप मेरे से पूछोगे कि चीनी डाली थी या नहीं डाली थी. शुगर विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मैंने आपको बोला कि मैंने दोपहर को दाल के साथ 2 रोटी खाई, ठीक है, तो अब वो रोटी पे मैंने घी, सम पीपल पुट ऑयल ऑन रोटीज ना, आपने लगाया था या नहीं लगाया था, ठीक है. अगर मैंने बोला कि मैंने चाय या कॉफ़ी ली है तो ऐसा तो नहीं है मैंने ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी ली है, क्योंकि इसमें तो दूध नहीं पड़ेगा. अगर दूध पड़ेगा तो मैं स्किम यूज़ करती हूँ, या मैं होल मिल्क यूज़ करती हूँ, या मैं टोन करती हूँ, या मैं कौन सा करती हूँ. इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. ठीक है. सो दिस इज इन डिटेल्स, यू मेक अ नोट. फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, आपके इसमें गिवन नहीं है, बट स्टिल इट इज इम्पॉर्टेंट. वाई? देखो 24 आवर डाइटरी रिकॉल आपको समझ में आ गया होगा, इट इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक. और 24 आवर डाइटरी रिकॉल इसमें गिवन नहीं है, बट यूजुअली 3 दिन का लिया जाता है. इमेजिन 3 days for a person. लाइक इन माई PhD आई हैड 400 सब्जेक्ट्स, तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का 3-3 दिन का डाइटरी रिकॉल लिया था, ठीक है. और वो 3 उसके अंदर आई टुक रिकॉल, यू बाय स्टैंडर्ड टेक अ 2 वर्किंग डेज, ठीक है, एंड 1 छुट्टी. छुट्टी मतलब वीकेंड, ठीक है. तो वाई? बिकॉज ईटिंग पैटर्न ऑन अ वर्किंग डे विल बी वेरी डिफरेंट फॉर अ ईटिंग पैटर्न ऑन अ छुट्टी वाला दिन. जैसे सैटरडे संडे होता है, हम शायद ब्रंच खाते हैं, फिर हम कुछ और खा लेते हैं, फिर शायद हम कोई मील स्किप कर देते हैं. बट वर्किंग डे पे वी आर ऑल फिक्स्ड अप ना. इफ यू गो टू ऑफिस, यू आर अ होम मेकर, तो हमारा जो पैटर्न है वो जनरली सेट रहता है कि सुबह ब्रेकफास्ट इतने बजे करना है, लंच लेके जाना है, वट, ठीक है. तो टू अवॉइड दैट बायस यू यूजुअली टेक 2 वर्किंग डेज एंड 1 नॉन वर्किंग. बट हमारी डाइट्स ना ज़्यादातर सेम ही रहती है. मैं क्या कर लूँगी, आज एक वाली दाल खा लूँगी, कल को दूसरी दाल खा लूँगी, ठीक है. आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी खाई है, कल मैं बैंगन खा लूँगी. तो हमारी जो डाइट्स है ना वो इतनी वर्किंग डेज में फ्लक्चुएट नहीं करती है, right? So you usually say that if you have huge population, you can also go in for 2 days. But 2 days में भी it is 1 working and 1 non-working. आप दोनों working भी ले सकते हैं, आप दोनों non-working भी ले सकते हैं, ठीक है. So this is the issue. अब डाइटरी रिकॉल मैंने बोला कि आपने सपोजिंगली इस बच्चे का डाइटरी रिकॉल 2 दिन का लिया, तो डाइटरी रिकॉल जो है ना वो मुझे वो 2 दिन की ही पिक्चर देगा, ठीक है. अब उसमें आपने देखा कि बच्चे ने फ्रूट तो खाया नहीं, तो आप ये कमेंट नहीं कर सकते कि बच्चा डाइट में फ्रूट नहीं लेता. आप ये कमेंट कर सकते हो कि 2 दिन का जो मैंने इसका डाइटरी रिकॉल लिया है उसमें बच्चे ने फ्रूट नहीं खाया. बट डाइटरी रिकॉल को ज़्यादा रोबोस्ट करने के लिए, उसकी एफिकेसी, उसकी वैलिडिटी इंक्रीज करने के लिए, यू ऑल्सो हैव अनदर स्मॉल क्वेश्चन है विच इज नोन एज फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है. अब उसमें क्या होता है, उसमें जस्ट हैव टू डू अ टिक टिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो उसमें क्या होता है, सारे के सारे फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. उसमें मैंने पूछा कि दही, लस्सी, पनीर, वट एवर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का, दूध हो गया तुम्हारा, या दालें हैं तो होल पल्सेस, वॉश्ड पल्सेस, स्प्राउटेड पल्सेस, या वेजिटेबल्स हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, whatever, ठीक है. तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट फूड ग्रुप्स, एंड देन यू आस्क फ्रीक्वेंसी ऑफ कंज्यूमिंग दैट, ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आपने जब मेरे से पूछा कि आप दूध कितना फ्रिक्वेंटली लेते हो, मैंने बोला डेली. लेकिन अगर आपने मेरे से पूछा कि पनीर कितना खाते हो, तो मैंने शायद बोला कि यार हफ्ते में शायद 1 बार, ठीक है. ऐसे ही दालों में आपने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि ठीक है, हो सकता है हफ्ते में 2-3 बार मैं वॉश पल्सेस खाती हूँ और 2-3 दिन बाद मैं होल पल्सेस खाती हूँ.
But as far as sprouts are concerned, I usually consume them once a week or maybe 15 दिन में एक बार. अब इससे क्या हो गया कि मेरे को डाइटरी रिकॉल के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई दैट व्हाट इज माय यूजुअल डाइटरी इंटेक. अब इस केस में जब आपने बच्चे का डाइटरी रिकॉल लिया, उसकी मदर ने आपको बताया भाई ये फ्रूट तो डेली बेसिस पे नहीं खाती है, हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार खाती है. अब भाई वो 2 दिन वो नहीं थे जिसमें उसने फ्रूट खाया, ठीक है, तो वो आपको एवरेज तो निकालनी पड़ेगी, बट दैट विल गिव यू अ बेटर क्वालिटेटिव पिक्चर. ठीक है, क्वालिटेटिव डाइट्स तो उसने भाई बोला है कि भाई फ्रूट वो हफ्ते में 2-3 बार खाती है. अब आपने मेरा कल का लिया और आपने मेरा परसों का लिया था, मैंने दोनों दिन फ्रूट नहीं खाया था, ठीक है. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मदर बोल रही है कि नहीं ये फ्रूट तो रोज खाती है, ठीक है, लेकिन भाई डाइटरी रिकॉल में तो आपने मुझे नहीं बताया कि बच्चे ने फ्रूट कब खाया है, तब हो सकता है कि उसको याद आ जाए, ओ अच्छा आई मिस्ड, उसने इस टाइम पे फ्रूट पी लिया था. ठीक है, so this can give you a cross validation of things. So 24-hour dietary recall and FFQ are the two methods which we use to analyze the dietary intake of population, and this is done for both children also and adults also. Is this fine with everyone? Anything I need to repeat, I need to redo? बताओ Can you repeat क्या चीज. dietary recall? पूरा dietary recall, No, the 24 last hour dietary one. recall and FFQ. So FFQ is food frequency. ठीक है, सो फूड फ्रीक्वेंसी मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ कॉमन फूड आइटम्स, एंड यू कैन रिलेट दैट फ्रीक्वेंसी विद द रिजल्ट्स ऑफ 24 आवर डाइटरी रिकॉल. जैसे आप सपोजिंगली मेरे रिकॉल में निकल के आया, ये बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, और मैंने ये सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, और मैंने ये देखा कि ER के हिसाब से बच्चे का आयरन इंटेक बहुत कम है. ठीक है, अब आप उसको फूड फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट कर सकते हो ना, कि जितनी आयरन रिच चीज़ें हैं, मे बी द चाइल्ड इज वेजिटेरियन तो वो मीट प्रोडक्ट्स तो खा ही नहीं रहा, ठीक है, और मुझे पता है कि जैसे जैगरी में आयरन होता है, बाजरा में होता है, तो मैंने फूड फ्रीक्वेंसी में देखा कि उसका कंजम्पशन भी बहुत कम है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट दीज टू टुगेदर. बट अगर दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी हो तो 24 आवर डाइटरी रिकॉल इज मैंडेटरी. It is always better to take FSQ along with 24 hour duty call because that will help you in fetching more accurate data, right? But अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी है, always going for FFQ. कभी आइसोलेशन में नहीं लेते हैं, यूजुअली नहीं लेते हैं, ठीक है. So 24 hour dietary call is mandatory. Is this fine? Is this clear? Ma'am, a question. In हाँ. exam, will we have a case study like that to answer? No, but they can ask you that as a part of dietary assessment what method you can adopt. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Anything else? मैम इसमें लाइफ सेडेंट्री लाइफ या मॉडरेट ये वगैरह सब नहीं आता है कंसीडर करना. मतलब हेलो. क्या चीज़ मैं समझी नहीं, किसमें Kind of our habit, our lifestyle, whether the person is active or sedentary. No, but see whatever results you will be getting using 24 dietary recall or whatever, है ना, आप उसको कंपेयर जब ER से करोगे, तो अगर आप सेडेंट्री हो तो आपने सेडेंट्री वाले से ही करोगे ना, Yes, right. है ना. तो जब आप ER, अब जैसे आप मान लो कि कोई विमेन है जो प्रेग्नेंट है, तो उसका जो भी डाइटरी इनटेक आया आप उसको उसी फिजियोलॉजिकल स्टेट के हिसाब से करोगे ना. सो आप जो वो देख रहे हो, जो रेफरेंस दे रहे हो, दैट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी एंड अदर थिंग्स व्हिच वी डिस्कस्ड. Okay, ma'am. है Yes. ना, ठीक है. ओके जी, एनीथिंग एल्स? आई डिडंट टुक अ ब्रेक इन बिटवीन बिकॉज़ मेरे को ये फ्लो नहीं तोड़ना था, सो दैट प्रॉब्लम हो जाए. बट आप बताओ अगर आपको और कोई डाउट्स हैं तो. सो और व्हाट इसमें आई ना प्रैक्टिकल एक्टिविटी बोली है, लाइक वो सब हमको क्वेश्चंस पूछेंगे क्या एग्जाम में कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी कहाँ है? प्रैक्टिकल एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, राइट? या हाँ, इट इज नॉट देयर इन द एग्जाम प्रैक्टिकल. usually practical activities are not asked in exam, but based on that you can get a theoretical question. जैसे मैंने अभी अच्छा. बोला that they can ask you ना कि अगर 4-year-old child है तो उसके हाँ. लिए आप कौन से मेथड यूज करोगे असेसमेंट के लिए, ओके. है ना. तो यू कैन राइट कि एंथ्रोपोमेट्री में वी कैन टेक हाइट, वेट, वी कैन टेक एनयूएसी, तो उस तरीके से दे कैन आस्क, बट यू विल नॉट गेट एनीथिंग टू कैलकुलेट कि 24 आवर हाँ वही वो सब नहीं जो होएगा ना. तो आपको ठीक. सिखाया ही नहीं है तो वो पूछेंगे. एग्जैक्टली. ओके. थैंक यू. ओके जी, एनीथिंग एल्स? Please just flip through your pages and just let me know if anything needs to be
anything I need to discuss it again in case of this nutritional assessment ka chapter, because you do get questions in exam related to this unit. ठीक है, तो एक बारी please just flip through for 2-3 minutes and just let me know. So I'm keeping myself on mute. Just take 2-3 minutes and then we can start. Yeah, so can we go ahead? Which handouts? Anything Yes, class? ma'am. Yes. हाँ जी. Okay, so after this, there is this very small unit or a section on preschool age. I'll just share my screen because वो बहुत थोड़ा सा है, तो I can finish it off in another 5 minutes, and then we can proceed forward. ठीक है, एक second मुझे ऐसे ठीक है. हाँ जी. ठीक है, तो ये प्री स्कूल से रिलेटेड है, जैसे हमने प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी किया था, राइट. सो दिस चैप्टर डील्स विद न्यूट्रिशन थ्रू द लाइफ साइकिल, दैट इज योर प्री स्कूल एज. So we know what is a preschool age, जहाँ पे बच्चा has started to be a little independent, right? Because during infancy he was totally dependent, right? But preschool years में क्या हो गया that it is a foundation for the lifetime. और जो भी बच्चे के न्यूट्रिशनल या हेल्थ प्रैक्टिसेस आप फॉर्मुलेट करते हो यूजुअली प्री स्कूल्स में, वी से दैट दीज आर द फॉर्मेटिव years, okay? And this is actually the age जहाँ पे बच्चा पहली बार comes in this social setting. प्री स्कूल मतलब प्ले स्कूल एज ना, आप प्ले स्कूल में बच्चे को डालते हो, तो ही माइट कम अक्रॉस अदर पीपल, अदर सोशल कॉन्टैक्ट्स, टीचर्स हो गए, बाकी सब पीयर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, एंड अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद देम. Okay, so we say that this is a very very crucial period for physiological development, and physiologically it has to be dependent on the food intake. So whenever I talk of preschool age, there are three important things. First, by this time the child can eat by himself. अगर आपने 6 महीने में वीनिंग बच्चे की स्टार्ट कर दी थी, तो प्री स्कूल इज लाइक 2.5-3 years, तब तक तो बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली खा सकता है. Obviously he or she might need a little help, but independency comes in. And then you will realize that family का जो भी नॉर्मल खाना बना होता है, the child can enjoy that. You don't have to make something separate for the child to feed him, as you do at 6 or 8 months of age. And then एपेटाइट जो है वो इन्फेंसी से थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज इन्फेंसी में ग्रोथ रेट इज वेरी वेरी हाई. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने वो जीआई ट्रैक और सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. तो वी यूजुअली से दैट प्री स्कूल एज चाइल्ड शुड बी ईटिंग सेम एज द फैमिली, राइट. बट अगेन वेरी स्पाइसी थिंग्स नीड्स टू बी अवॉइडेड, बिकॉज अभी भी बच्चे का जो जीआई ट्रैक है वो बहुत फ्रिजाइल होता है. ओके, then we always say that the child might not be able to tolerate very high spicy or very high flavored foods, so it should be a little fetch to the detailings of the preschool child. Then we say that अब यहाँ पे ना do's and don'ts ये डिस्कस करते हैं. सो दिस चैप्टर विल बी डन, राइट. अब इसमें पहली चीज़ क्या है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, बच्चा खेलकूद में खेलने में ज़्यादा इंडल्ज रहता है. तभी हम बोलते हैं कि जो प्री स्कूल एज होती है उसमें यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द टाइप ऑफ फूड यू आर गिविंग टू द चाइल्ड. एंड यूजुअली इन आवर प्रैक्टिकल्स आई ऑलवेज से दैट गोइंग फॉर फिंगर फूड्स. फिंगर फूड का क्या मतलब होता है, नथिंग मेसी. अब लंच है या डिनर है जहाँ पे बच्चे को एक जगह बैठ के अगर आप खिलाना चाहते हो, तो उसमें भी थिंग्स लाइक विच कैन बी इजिली स्पेल्ड ऑफ becomes a problematic situation for the child. तो प्ले स्कूल में वो बच्चा खेलने गया और आप उनको इतना मेसी लंच बना के दे रहे हो, वो इरिटेट हो जाएगा या वो नहीं खा पाएगा, वो स्पिल हो जाएगा. सो बेटर थिंग इज व्हाट, गोइंग फॉर सैंडविचेस, वो सैंडविचेस व्हिच आर स्टफ्ड, राइट. अगर आप पराठा भी दे रहे हो तो आई यूजुअली प्रेफर कि आप वो रोल करके सब्जी मत दो. आपने जो भी डालना है मेक दैट इन फ्लावर इटसेल्फ. ग्रीन लीफी वेजिटेबल डालनी है, थोड़ा सा बेसन मिक्स करना है, जैसे हम लोग मिस्सा या दाल का पराठा बनाते हैं, बिकॉज दैट विल बी इजियर फॉर द चाइल्ड टू जस्ट क्विकली रोल एंड ईट इट, राइट. बेसन का बैटर बना रहे हो तो उसमें चॉप चॉप एवरीथिंग एंड देन मेक इट. सो फिंगर फूड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो प्ले एक्टिविटी के साथ उनका इंटरफेरेंस नहीं होता है. दूसरी चीज़, never impose or never transmit your likes and dislikes to the child. Okay,
जैसे बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है, हमारे घर तो ये बनता ही नहीं, अब हमारे घर ये नहीं बनता तो इसलिए आपने बच्चे को भी उसकी आदत नहीं डाली है। सो यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, दैट इज योर मसला। बट प्री स्कूलर्स के लिए वी ऑलवेज से दैट गिव देम अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट एवरीथिंग। हो सकता है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं है, आपके घर में घिया नहीं बनता क्योंकि आपको पसंद नहीं है, बच्चे को पसंद आएगा, ठीक है। तो यू वी ऑलवेज से दैट स्पेशली पेरेंट्स शुड नेवर मॉक लाइक एंड डिसलाइक्स in front of the children. जैसे on a table if you're sitting and there is a खिचड़ी which is built up and you suddenly say कि आया है खिचड़ी बनाई है, right? तो वो बच्चे का माइंड पहले से ही सेट हो जाता है कि ये तो अच्छा नहीं है, the child might not taste it also. Then attractive and well prepared, I have already told you, ठीक है। Messy in eating is related to your finger foods, right? Then हमेशा हम बोलते हैं कि बच्चे को मेजर मील से पहले ना कोई ऐसा स्नैक मत दो जो उसकी भूख खराब कर दे, because lunch and dinner and breakfast, these are the three important meals, okay? Praise the child to eat himself and discourage him for having a snack in between regular meals। भूख लगी हुई है तो चिप्स का पैकेट खोल के खिला दिया, तो एक तो दैट इज नॉट वेरी हेल्दी, एंड दूसरा जो लंच टाइम था या जो डिनर टाइम था ना, दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय समथिंग व्हिच इज जंकी, okay? So avoid that. Then we say that never associate food with punishment or with good things for the child। जैसे ये तो हम सब करते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, आई फेच यू अ चॉकलेट और एन आइसक्रीम, राइट? चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम एंड चिप्स आर नॉट हेल्दी, बट व्हाट वी आर डूइंग इज इन अ वे कि उसको प्रेस करने के लिए, ठीक है, आपने एसोसिएट कर दिया दैट दीज आर द गुड फूड, तो अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो आई विल बी हैविंग दैट। सो दैट इज व्हाई वी से दैट यू शुड नॉट एसोसिएट certain foods as bribe or as an indication of good things, so they associate these foods with their outcomes, okay? And then obviously physical activity nowadays is very very important, so always indulge preschool or particularly आज के सिनेरियो में जहाँ पे you have gadgets, you have indoor games, you have TV games and whatnot, so this is giving a rise to obesity, particularly in case of preschool years। तो अगर आप ओवरवेट एंड ओबेसिटी पैटर्न देखोगे इंडिया में, एनएफएचएस डेटा में भी देख लेना, यू विल सी अ वेरी हाई ट्रेंड इन दैट। So the reason for that is what, that nowadays even preschoolers, they don't want to go out and play, and we as parents also don't want them to go because of security reasons, या बाहर जाएंगे गिर जाएंगे, या other things, but whatever the fact is, the thing is कि physical activity है that should not be distorted, okay? So this is all they have explained in preschooler। देन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वी हैव ऑलरेडी डन जब हमने ERRDA किया था, और इसमें दे हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ अ menu that needs for a food plan that you can go in for a 2-year-old child or a maybe 4 or 5-year-old child, okay? Then they have given you a small concept related to role of infection in causing malnutrition, ठीक है। तो malnutrition में already discuss किया था, and यहाँ पे ये cycle, and this cycle usually comes in exam also, but this is nothing, this shows a vicious cycle of infection and malnutrition। So we say that in case of children, infection and malnutrition are interrelated, it is a vicious cycle, one leads to the other, right? अब इसको अगर मैं बहुत simplest method में explain करूँ तो ये क्या है, देखो अगर एक बच्चा malnourished है, उसका बर्थ वेट कम था, इन्फेंसी में भी वो ठीक से ग्रो नहीं हुआ, अब प्री स्कूल एज में भी उसका फूड इनटेक या व्हाटएवर इज नॉट एडिक्वेट, सो द थिंग इज दैट व्हाट अ बच्चा इज अ malnourished चाइल्ड, ठीक है। अब अगर ये malnourished चाइल्ड है तो दैट विल रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस आल्सो, बिकॉज वो बच्चा ऑलरेडी कमजोर है ना, तो उसको डायरिया या बाकी डेफिशिएंसी डिजीजेस पे भी ही इज एट रिस्क। ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस इज कि अगर वो बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हिज टोटल इनटेक ऑफ द फूड न्यूट्रिएंट्स। बच्चे को बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, या उसको कोई डेफिशिएंसी प्रॉब्लम है, तो दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन लोअर इनटेक ऑफ फूड ग्रुप, and this lower intake of food group will further create the period of malnutrition। So that is why we say that malnutrition and infection, this two go hand in hand, one can create problem for the other। तो malnourished है तो infection ज़्यादा होगा, but on the contrary अगर infection बार बार हो रहा है तो बच्चा will be malnourished also। So it is very important that you need to provide good health care and adequate food intake, and along with that proper treatment also। Things like diarrhea etc they need to be cured, because बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, एंड अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज, राइट, या उसका जो डाइटरी इनटेक है वो भी कम हो जाता है। सो दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट। सो दिस वाज द लास्ट
topic which I wanted to take up for today. So anything we need to discuss here, or that's it? कोई मैम ये doubts? विषय साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से रीड करना चाहिए? तो ये तभी गोल गोल दिखाई हुई है ना, विशेष साइकिल का मतलब ये होता है कि वन लीड्स टू दी अदर। तो बट वी यूजुअली से कि जो But they मैल नरिशमेंट है वो शुरू तुम्हारा एक्चुअली में इंट्रायूट्राइन लाइफ से ही हो जाता है। they are showing underweight to normal weight and then taking normal weight to infection illness. एग्जैक्टली, है ना। तो अगर ये नॉर्मल वेट है और अंडर वेट है तो उन्होंने अंडर वेट का दिखाया हुआ है ना कि पुअर हेल्थ केयर है, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक है, इनएडिक्वेट फूड इनटेक है। सो नॉर्मल वेट चाइल्ड इफ हैज इन्फेक्शन कैन हैव ऑल दीज थिंग एंड देन द चाइल्ड कैन बिकम अंडर वेट, ठीक है। पर अगर एक अंडर वेट चाइल्ड है जिसको आप अच्छा हेल्थ केयर और अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो, दैट चाइल्ड कैन ऑल्सो गो बैक टू नॉर्मल वेट। उन्होंने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। And after this recovery period, they have again showed inadequate nutrition, poor health care on the right side. हाँ, सो दैट डिपेंड्स ना कि अगर बच्चे को अगर कोई सेकेंड इन्फेक्शन हो गया तो अगर एक बच्चे ने एक बार रिकवर कर भी लिया लेकिन देन ही हैज सेकंड इन्फेक्शन, यहाँ पे लिखा है ना इन्फेक्शन इलनेस 1 एंड इन्फेक्शन 2, ठीक है। तो पहले वाले से अगर वो रिकवर कर भी गया एंड सपोजिंगली चाइल्ड वाज हैविंग डायरिया, ठीक है, तो आपने उसको ठीक से डाइट दी, सब कुछ किया, बट उसके बाद उसको मीजल्स का भी इन्फेक्शन हो गया। सो दिस इज लाइक अ टू एंड फ्रो कंडीशन, ठीक है। This is also for age group, ma'am. ये इसमें तो प्री स्कूलर्स को रिलेटेड ज्यादा डिफाइन किया हुआ है बिकॉज ये जो 1 to malnutrition 6. का, हाँ, तो ये जो malnutrition का जो विशेष साइकिल है वो प्री स्कूल एज में ज्यादा देखा जाता है। Okay, thank you. Anything else? Okay, so can I close the meeting? Is it fine? Or you need to discuss something else? So tomorrow most probably I will be taking on old age. Okay, old age ka chapter we will be discussing, and by that time you can go through your previous sessions also and we can just get it. Okay? Is this fine? So that's all for today. Tomorrow And it's Monday is the 4:30. एक हाँ, कोई बात नहीं, today we are closing it early so it's okay. and हाँ, Monday tomorrow is at the 4:30. Tomorrow also 4:30. Okay. मंडे को तुम्हारा सेशन मेरे साथ ही है ना, मंडे को आई कैन मीट यू एट 3 to 5 वाला दिन। okay. Ma'am, what's the time tomorrow? Tomorrow it will be 4:30 again. Thank you. ठीक है, Ma'am, what are we covering tomorrow? What मोस्ट are we? प्रोबेबली ओल्ड एज तो करेंगे, Okay. ठीक है। And tomorrow also 4:30. टुमारो 4:30, मंडे 3 o'clock। Okay. सिर्फ कल की क्लास 4:30 बजे होगी, उसके बाद मंडे से 3 to 5। Thank you. ठीक है, ओके, टेक केयर Yeah, एवरीवन, thank आई you. सी यू टुमारो। Yeah. ओके, बाय बाय। Thank you. या बाय बाय।